ओके, सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कल? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें भी हम लोग पहला हेडिंग स्टार्ट किए थे, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। हमें एल्कोहल से सर वीडियो बंद कर लीजिए। ओके, दैट इज स्टार्टेड। लेट मी चेक। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। एल्कोहल रिमूवल ऑफ वाटर गिव्स अस एल्कीन। नाउ देयर आर टू प्रोसेस। इसमें दो सेक्शन है, ए एंड बी। जब हम एलुमिना से पास करते हैं, व्हाट वाज एलुमिना? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड दूसरा विथ कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स। In mineral acids, we can choose concentrated H2SO4 sulfuric acid and concentrated H3PO4. By these two methods, we can remove water molecule to get alcohol. And the general representation for alcohol was RCH2 CH2OH. Right? आइए एक बार क्या पढ़ाते फटाफट। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट उसमें है बाय पासिंग द वेपर ऑफ एन एल्कोहल ओवर हीटेड एल्यूमिना। सेकेंड, बाय हीटिंग एन एल्कोहल विद अ सर कंसंट्रेटेड आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है मेरी? सर आवाज नहीं आ रही है, सर कट के आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ नहीं आ रही है। आपकी तुम भी चोर हो, तुम्हारा भी नहीं आ रहा है। Right, this is the general representation of alcohol RCH2 CH2OH. When we pass it through the alumina at the 623 Kelvin temperature, we get alkene and water. What we need to keep in our mind is, at the time of dehydration, there will be removal of water. For example, C2H5OH. Here, this is ethanol. C2 stands for ethane. So this is ethanol. When it passed from the alumina at very high temperature, nearly 623 Kelvin, this OH and one H from this combines and forms H2O. What is left over here? This is C2 and this will be H4. यहाँ C2H5OH था, इसमें से OH मैंने बाहर निकाला और इस H5 से एक हाइड्रोजन, तो मैंने क्या बना लिया? H2O। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये कितना बचा? ये वाला हिस्सा 4 और C2. So this is C2H4 and this is our ethene. Is that clear? सभी को ये क्लियर है? कल डिस्कस हो गया था ये सब? गुड। ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हमने देखा था कि जो हमारे टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, उसमें से सबसे आसानी से कौन से एल्कोहल डिहाइड्रेट हो सकते हैं? तो सबसे आसानी से 3 डिग्री, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें तो ये सबसे आसानी से डिहाइड्रेटेड होने के लिए किसको हम यूज कर सकते हैं? H2SO4. 2 degree and 3 degree alcohol are best. This will be dehydrated by dilute sulfuric acid. हमारे पास जो पीछे ऑप्शन थे सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, अगर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। सेकेंड मेथड, बाय पासिंग हीट और हीटिंग एन एल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 453 Kelvin. Check it out. This is the general representation of alcohol RCH2 CH2OH. When it is passed through concentrated sulfuric acid at temperature 453 Kelvin, near about 180 degrees Celsius, then we get alkene and water. The process is exactly same. The difference is
the presence of this. In previous method it was alumina, here it is concentrated sulfuric acid. This is the first difference. Second difference, there was the temperature required 623 Kelvin and here it is required 453 Kelvin. So there are two major changes only. The product will be same. In previous one we had got ethene and alcohol water from ethanol. The same thing we are going to get here also. Check it. This is CH3 CH2OH, concentrated H2SO4. Temperature will be 180 degrees Celsius and we'll get OH from here and one H from here. So it will become what? H2O. This will remain CH2 and this is already CH2. So we'll write down CH2, CH2. Now check it out. This carbon is forming how many bonds? 2 from this hydrogen. This is also forming 2 with this. So how many bonds are more required? We need 2 bonds. So this is ethene. In normal words हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऊपर एल्यूमिना के साथ था वही प्रोसेस हमारा यहाँ पर concentrated H2SO4 के साथ भी रिपीट होता है. The only difference, वहां पर हम एल्यूमिना यूज करते थे, यहाँ हम सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन पार्ट ले रहे हैं. वहां टेम्परेचर हमारा 180 से ज्यादा होता था, यहाँ टेम्परेचर हमारा कम होता है. यार पानी कौन गिरा? Let's check the next thing. Other dehydrating agents. और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? अभी तो हम लोग पीछे ही पढ़े थे. कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ऐसे ही साइक्लोहेक्सेनॉल को हम डिहाइड्रेशन कराए तो हमें क्या मिलता है? साइक्लोहेक्सीन. अगर आपको दे दिया जाए दिस इज द कंपाउंड, दिस इज व्हाट? साइक्लोब्यूटेनॉल, और वी कैन राइट डाउन साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, राइट? 4 कार्बन्स हैं, so this will be butane. This is a cyclic compound, so this is cyclobutane all. अगर हम इसको डिहाइड्रेशन कराएं, let's say in the presence of concentrated H2SO4, nearly temperature 180 degrees Celsius, so what we are going to get? Check it out. Cyclobutene. First of all, we will remove water and here we'll get cyclobutene. Here we'll get cyclobutene. Let's check it. This formula will be C4, 1, 2, 3, 4, H. There will be 2, 2, 2. There will be 1 and 1. Total 8 O. This is the molecular formula having C4H8O. Look, minus H2O will give you how much? It will be C4H6. Yes. Check it. 1, 2, 3, 4. This is having C4. Let's count hydrogen. 2, 2. It will be having 1, 1. So C4H6. Yes. And this is cyclobutene. Or we can also say cyclobute-1-ene. Right? Yes. In the same way, this is cyclohexanol. So it will provide us cyclohexene. In case of cyclopentanol, what we'll get? The product? Any idea? अगर हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉल है तो उस केस में प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? साइक्लोपेंटीन और वाटर. यस विकास, प्लीज आस्क. जो बच्चे नहीं पूछ रहे हैं अभी, प्लीज वो अपने आप को म्यूट रखें ना. विकास पूछिए बाबू. आपकी आवाज नो प्रॉब्लम. मैं आप कोशिश करूंगा ना कि आप इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोग को भेज दिया करूं. कोशिश करते हैं, अगर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना
तो मैं ये पूरा लेक्चर को रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो जिसके यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या है वो उसको वहां से कवर कर लेंगे। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा अभी देखते हैं। विकास आप बाबू बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। ये इरेज कर दे, स्क्रीन पर ना लिखे। हाँ पूछे क्या कह रहे हैं। विकास कोई समस्या बच्चा? मैं आगे कंटिन्यू करूं? ओके लेट्स कंटिन्यू। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्चुअली हो कैसे रहा है, इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स से फर्स्ट एसिड प्रोटोनेट्स अल्कोहल। एसिड में हमें क्या मिलते हैं? H+ आयन। वो क्या करता है, अल्कोहल को प्रोटीनेशन कराता है, यानी उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट करता है। लेट्स चेक इट हाउ। मेरे पास है इथेनॉल CH3CH2OH। हमें इसका अगर प्रोटीनेशन कराना है हम क्या करेंगे? वी विल ऐड H+ आयन and this is the reversible process and we'll get what? CH3 CH2O। लुक यहां तक ये पूरा कॉपी, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ, कितने हो जाएंगे? 2। दिस विल बिकम OH2+। और ये प्लस चार्ज हमारा कहाँ जाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन पर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन सेकेंड स्टेप, फर्स्ट लेट मी नो दिस इज स्टेबल और अनस्टेबल? Unstable. Unstable. So in second step, for being stable, it will try to lose its water molecule Yes, sir. and it will become CH3CH2 plus H2O. Right? Now the problem is where will this charge shift? This will shift on this carbon or this carbon. Let's see carbon number 1, carbon number 2. Carbon number 2. Good. So this will shift here. In the next process, CH3CH2 plus. CH2 plus means it is having a vacant orbital. Yes. Okay. And CH3 can be written as CH2 single bond H. 3 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 को यहाँ पे रखा कंडेंस फॉर्म में, एक को मैंने ऐसे दिखा दिया। ऐसे दिखाने के पीछे रीजन क्या है? अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी ओर खींच लेगा। अगर ऐसा हुआ तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा? लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर है CH2 और इसके पास है हमारा लोन पेयर। बैक बॉन्डिंग याद है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कंबाइन हो जाएंगे, नहीं याद है तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जंप करके जाएगा और कंडीशन कैसी हो जाएगी? कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये और ये मिलकर आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा C। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे थे, ये लिख लें H2 और यहाँ पे भी क्या है? H2। देखिए क्या बन गया? इथीन। तो ये सब पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हम लोग वहां बना रहे थे, वो एक्चुअली कैसे बन रहा है वो यहाँ पर प्रोसेस में डिफाइन किया गया है। सभी को क्लियर हो गया आज? आप? यस सर। आफ्ताब? यस सर। गुड। और किसी को कुछ पूछना है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में या फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें? आस्था? सभी हाइड्रोजन के आयन बचे हैं ना? हाँ H+ आयन, तो हम जो यहाँ पे यूज किए थे ना ऊपर प्रोटीनेशन में, ये H+ हमारा दूसरे फॉर्म में निकल गया। अच्छा। हाँ देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है विकास का, साइक्लोब्यूटाइन बनेगा ना कि साइक्लो
ब्यूटीन। देखो बच्चा, ये था क्वेश्चन ना हमारा, ये था हमारा साइक्लोब्यूटेनॉल। यस सर। तो बताइए C4H6 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं ये। अगर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन आएगा कि आइन? इन। इन, ये तो वो है ना अल्कीन ग्रुप, ये होगा साइक्लोब्यूटीन ना कि साइक्लोब्यूटाइन। और वैसे भी आप ये सोचो ना बच्चा, हम क्या बना रहे हैं, हम किसका प्रिपरेशन सीख रहे हैं, अल्केन का, अल्कीन का या अल्काइन का? अल्कीन। अल्कीन का। यानी कि हर रिएक्शन में मेरा टारगेट है कि मुझे अल्कीन ही चाहे, राइट। तो हम अल्काइन क्यों बनाएंगे अभी? अल्काइन जब हम डिस्कस करेंगे आगे तो वहां पर प्रोडक्ट बनता है। समझ आया बच्चा? विकास, आवाज नहीं जा रही क्या विकास के पास? खैर छोड़े, आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, आगे बार बार मैं इसको बताऊंगा नहीं, आपको ध्यान रखना है। प्रोटीनेशन का मतलब H+ का एडिशन, याद रहेगा? यस सर। गुड। नेक्स्ट सेकंड मेथड हमारा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स कौन से? जब हम किसी भी अल्केन में एक हेलोजन ग्रुप को अटैच करते हैं, लेट्स से मेरे पास है मीथेन, इसमें मुझे एक हेलोजन को ऐड करना है, मान लीजिए X, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और लिखेंगे CH3X। लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, यस तो हम सर। इसको R लिख दें और इसको क्या लिख दें, X। ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। एक्स। अब ये हमारा CH3Br हो सकता है, दिस कैन बी CH3I, दिस कैन बी CH3, CH2Cl। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मिथाइल ही हो, ये इथाइल भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए इथाइल है और यहाँ मैंने क्या यूज किया यस है, सर। क्लोरीन। तो बस उसमें आपको ये पता करना है कि एक हेलोजन का एटम होना चाहिए। देखिए हमारे पास कई सारे हेलोजन के एटम होंगे, हो सकता है हमारे पास RF हो, we can have RCl, we can have RBr and we can also have RI। हमारे पास इतने हेलो एल्केन्स पॉसिबल हैं। ये ध्यान रखिए ये कौन से हैं, मोनो डेरिवेटिव्स हैं, इसमें हेलोजन का यस सिर्फ सर। एक एटम है। देखिए RF का जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग पीपीपीपी ओवरलैपिंग होती है। कार्बन और फ्लोरीन दोनों सेकेंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग रीजन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, ये टूटेगा नहीं। मतलब इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी होगी, तो ये जल्दी रिएक्शन शो नहीं करेगा। वही अगर हम आरसीएल की बात करें तो आपको याद है हम लोग पीछे जब हेलोजिनेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर डिस्कस किया था कि क्लोरीन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन था। यानी क्लोरीन का भी ना यस सर। हम करके मतलब आरसीएल से भी हम अल्कीन बना सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। आरएफ से तो बिल्कुल नहीं, वी कांट मेक, बट आरसीएल से थोड़ा बहुत चांसेस हैं। आरबीआर और आरआई में आराम से हो जाता है। देखिए ये चीज यहां लिखा गया है, फ्रॉम मेजरली, मतलब सबसे ज्यादा हम अपना अल्कीन कहां से बनाते हैं, आरबीआर और आरआई से। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं आरबीआर और आरआई में उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो बहुत कम है। वही अगर हम आरएफ की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कार्बन का कम है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होता है। पता है ना आप लोग को? दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द यस पीरियोडिक सर। टेबल। तो इसलिए यहां पर हम अल्कीन नहीं बना पाते। जब हम सीएल पे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ा थोड़ा चांस बनता है। इसलिए यहां लिखा है लेस फ्रॉम आरसीएल, यानी कि हम आरसीएल से भी बना सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज वेरी लेस चांस। लेकिन हाँ अगर हमें बनाना है तो हम आसानी से कब बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ आरबीआर एंड आर आई। इज दैट क्लियर? आरएफ क्यों नहीं सर? सर आरएफ, आप आरएफ क्यों नहीं? अभी तो हम लोग डिस्कस किया ना, आरएफ में जो एफ और आर है इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, 4 के अराउंड, और आर क्या हमारा मिथाइल ग्रुप ना, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और फ्लोरीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यस सर। इसलिए। और इनके जो ओके। बॉन्डिंग होती है ना कार्बन
अगर आप चेक करेंगे तो ये 2p ऑर्बिटल में आता है। आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का यही होता है 2p। फ्लोरीन का लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p5। आप देखिए यहाँ पर भी 2p ऑर्बिटल है, यहाँ भी 2p ऑर्बिटल है। जब 2p 2p ऑर्बिटल का हम ओवरलैप कराते हैं तो ये ओवरलैपिंग रीजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड यहाँ बनते हैं ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अभी क्लियर है सभी को? आपको बस ये याद रखना है आर और एफ में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब हम Cl में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी सी कम होगी, पूरा कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी, इसलिए RCl थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट देने के फेवर में आता है, पूरा नहीं। लेकिन जब हम RBr और RI में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमें आसानी से मिल पाएंगे। क्लियर सभी को? सब पीछे रिएक्शन में तो कर रहे थे हम लोग, वो तो हम अलग अलग कंडीशन पे करा रहे थे ना, जब हम कंडीशन बदलेंगे तब। अभी हमसे ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास RF है, क्या मैं इससे अल्कीन बना सकता हूं? तो जवाब होगा नहीं। मेरे पास RCl है, क्या मैं इसकी हेल्प से अल्कीन बना सकता हूं? सो देयर माइट बी द चांसेस, हाँ उम्मीद है कि हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके करा सकते हैं। अगर हम RBr की बात करें तो ये आसानी से अल्कीन दे देगा, RI की बात करें तो आसानी से अल्कीन देगा। डिफरेंस यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है इसलिए नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा सा कम हुआ इसलिए कुछ चांसेस हैं। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम हो गई दोनों में। हमारा क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, लगातार डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन में ज्यादा था इसलिए नहीं देगा, यहाँ कम हुआ इसलिए चांसेस बढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होता है इसलिए यहाँ पर आराम से अल्कीन हमें मिलेगा। इज दैट क्लियर? सभी को पता चल गया? यस सर। चलिए अब हम मेथड पढ़ते हैं। RX क्या है हमारा, हेलो एल्केन ऑन हीटिंग विथ एल्कोहलिक पोटास। अब पोटास देखिए क्या होता है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं पोटास। अब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के अंदर मिक्स करें तो हम इसको बोलते हैं KOH एक्वस। एक्वस टर्म पता है ना, वाटर में डिजॉल्व चीजों को एक्वस बोलते हैं। अगर हम इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मान लीजिए मैं इथेनॉल के अंदर मिक्स करूं C2H5OH, तब ये एक्वस तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये वाटर तो है नहीं, ये क्या है, एक एल्कोहल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्कोहलिक। यानी कि जब हम अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में मिक्स करके रखते हैं, सो दैट इज नोन एज एल्कोहलिक पोटास। समझ आया बच्चा? तो दिया है हेलो एल्केन ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास, दैट इज KOH एल्कोहल, लूजेस वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहां से एक हाइड्रोजन का हैलाइड, हाइड्रोजन H है, हैलाइड का मतलब क्या है, हैलोजन ग्रुप। ये क्या हो सकता है, HF, इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr एंड इट कैन बी HI। आप बताएं सबसे कम चांसेस किसके मिलने के हैं, HF, HCl, HBr या HI? HI। इसका सबसे कम चांस है। अभी आपको ये बताया गया है कि जब हम इनका रिएक्शन कराते हैं यानी डीहैलोजिनेशन कराते हैं तो वहां से हमें हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है, किसके मिलने के चांस कम है, HF का बिल्कुल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आप RF से अल्कीन तो बना ही नहीं सकते। जब RF से अल्कीन बनाते तो ये F क्या होता, H के साथ जुड़ के बाहर मिलता, लेकिन ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, हाँ तो ये तो मिलेगा नहीं। HCl मिलने के चांसेस है लेकिन क्या है, कम है, क्योंकि RCl की रिएक्शन भी कम होती है, लेकिन हाँ HBr और HI के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा। मैंने क्या कहा, समझ में आया आप लोग को? मैंने ये कहा कि क्योंकि RF वाला रिएक्शन से अल्कीन तो मिलेगा ही नहीं हमें, तो जब तक अल्कीन हमें RF से नहीं मिलेगा हमें HF भी नहीं मिल सकता। RCl से मिलने के चांसेस कम होते हैं इसलिए हमें HCl में मिलने का चांस कम है, लेकिन RBr और RI के रिएक्शन अल्कीन में काफी आसानी से होते हैं, इसलिए हमें HBr और HI सबसे आसानी से मिल पाएंगे। देखिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर दिया गया है RCH, यहाँ पर X लगा हुआ है। अच्छा हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, RCH2
CH2OH। ये था हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन, अल्कोहल का। ये देखिए हमारे पास हेलो एल्केन का है, ठीक है। हेलो एल्केन का मतलब एक हेलोजन का एटम का, यहाँ पे X लगा हुआ है, ये हमारा हाइड्रोजन है। अब मान लीजिए जब ब्रोमो इथेन लिखना है तो हम इथेन को क्या लिखेंगे, C2H6। क्योंकि हमें ब्रोमो इथेन लिखना है तो हम C2H5 करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां क्या लगा देंगे, Br। ये बन जाएगा मेरा ब्रोमो इथेन। तो देखिए ये ब्रोमो इथेन लिखने का तरीका है, सॉरी नीचे, जब हम ब्रोमो इथेन का रिएक्शन किससे कराते हैं, KOH से। तो देखिए ब्रोमो इथेन C2H5 था ना, ये 2C हो गया, ये लेफ्ट से हमारा 1 2 3 हाइड्रोजन, यहां हो गया हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां मैंने लगा दिया अपना X, जो कि हमारे यहाँ पर ब्रोमीन था, जो कि ब्रोमोइथेन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी कौन सा, अल्कोहलिक, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक पोटास। तो वहां से देखिए क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, ये जो पोटेशियम है ये किस पर अटैक कर सकता है, सोचे कार्बन पर, हाइड्रोजन पर, या ब्रोमीन पर। पोटेशियम एक मेटल है, सर आवाज नहीं आ रहा है। पोटेशियम एक मेटल है, ये पोटेशियम किस पर अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन या कार्बन, ये इस पे अटैक करेगा और देखिए क्या बनाएगा, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस यहां जो OH है ये इस वाले हाइड्रोजन पर अटैच करेगा और क्या बना सकता है, H2O। अब देखिए यहां क्या बच गया, कार्बन कार्बन, C2 1 2 3 4 हाइड्रोजन H4, और ये बन गया मेरा चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं, आवाज जा रही है सभी को। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास है लेट्स से इथेनॉल C2H5, सॉरी हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। जब हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, पोटास, अल्कोहलिक पोटास से, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, यस दिस विल फॉर्म पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस OH, यहां से H लेगा और क्या बनाएगा, H2O। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बचा, एक कार्बन। क्या है ये CH2 ग्रुप, क्या CH2 ग्रुप स्टेबल होता है, नहीं सर। नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रहा है ये, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक चीज हम लोग पहले भी सीखे है ना, मिथीन तो कभी बनता ही नहीं है, हाँ तो ये मिथीन कैसे बना सकते थे, तो हमें क्या बनाना होगा, इथीन। तो इथीन के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा इथाइल, मैंने ले लिया इस बार C2H5, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, I, ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने कराया KOH अल्कोहलिक। तो देखिए ये पोटेशियम किस पर अटैक करेगा, आयोडीन पे, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, और तुरंत कंबाइन होकर क्या बना लेगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। यहाँ का OH किस पर अटैक करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, जब यहां से एक हाइड्रोजन लेगा ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, H2O। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, ये बचेगा C2H4 तो बस ये हो तो गया, ये क्या बन गया हमारा, इथीन। इथीन। यही है ये रिएक्शन पूरा। रिएक्शन में देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें, एक वाटर मिल रहा है, दूसरा अल्कीन मिल रहा है, और तीसरा हमें ये देखिए क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ये है मेटल का हैलाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये हमेशा कौन सा होगा, पोटेशियम का हैलाइड KX होगा। ये KX कौन कौन हो सकता है बताएं, ये I हो सकता है जब हम यहाँ पर आयोडीन लिए रहेंगे, ये KBr भी हो सकता है अगर हम यहाँ Br लिए होते तो, और क्या हो सकता है ये KCl हो सकता है इन केस यहाँ Cl लिए होते, क्या ये KF भी हो सकता है, अगर हम यहाँ फ्लोरीन लें तो क्या हमें KF मिलेगा या नहीं,
KF नहीं मिलेगा। रीजन, अगर हम यहाँ पर RF लेते तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। यस ये सर। RF रिएक्शन नहीं करता तो फ्लोरीन और पोटेशियम आपस में कंबाइन नहीं हो सकते हैं। तब हमेशा याद रखिए KF नहीं मिलेगा यहां से। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके।